السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، آج ہم بات کرنا چاہیں گے سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کے حوالے سے، اور مختلف ایسے سرکاری ادارے ہیں جن کے ملازمین کی گروپ انشورنس ایک انشورنس کمپنی کو چلی جاتی ہے۔ مختلف اداروں نے مختلف انشورنس کمپنی سے بھی ہو سکتا ہے کانٹریکٹ کیا ہوا، لیکن زیادہ تر ایک ہی کمپنی کو وہ اماؤنٹ جاتا ہے۔ گروپ انشورنس کے پیسے انشورنس کمپنی کو چلے جاتے ہیں۔ ملازمین ساری زندگی اپنی سروس کرنے کے بعد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بھی گروپ انشورنس کے پیسے انہیں نہیں ملتے ہیں، اور یہ پیسے کیوں نہیں ملتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس میں معزز سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو گروپ انشورنس کے پیسے ہیں وہ ملازمین کے ہیں، ملازمین کا ان پر حق ہے، اور ریٹائرمنٹ کے وقت وہ اماؤنٹ جتنا بھی بنے جو کہ ان کی تنخواہوں سے کٹتا ہے، ان کی تنخواہوں سے کٹوتی ہوتی ہے، تو وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان ملازمین کو وہ پیسے دے دینے چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ محترم شاہد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو اسی یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں موجود ہیں۔ سہیل میمن صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ مسئلہ ہے کیا؟ سر، مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال جو ہے ایک ہیوی اماؤنٹ ہمارے جو ہے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹ کے فنڈ میں جمع ہوتا ہے۔ تو ملازم کو جب فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، پروویڈنٹ فنڈ جسے ہم کہتے ہیں، ماہانہ کٹوتی ہونے کے بعد سال اس کے بعد اس کا انٹرسٹ لگتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے، کسی کو 20,000 ضرورت پڑ گئی، کسی کو گھر میں کوئی اور معاملات ہو گئے، تو وہ فنڈ جو ہے تقریباً 3-3.5 سال سے لوگوں کو وہ فنڈ نہیں مل رہا، جو کہ کسی طور جو ہے وہ انتظامیہ روک نہیں سکتی۔ اس سے پہلے ملتا تھا؟ اس سے پہلے پراپر چل رہا تھا، 3.5 سال ہو گئے۔ واٹر بورڈ کی بات کریں؟ واٹر بورڈ کی جی۔ یہ پروویڈنٹ فنڈ جب بھی ضرورت پڑتی ملازم کو، بیٹی کی شادی ہے یا کسی اور حوالے سے، یا کوئی اور کوئی سیٹ بیک ہو جائے، مگر 3.5 سال سے ملازمین اپنے فنڈ کے لیے جو کہ ذاتی فنڈ ہے اس کو انتظامیہ خودبل بھی نہیں کر سکتی، کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ فنڈ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ایون یہ کہ ریٹائر ہو گئے ملازمین 3.5 سال سے جو ہے وہ ریٹائر ملازمین کے جو فنڈ ان کو فوری مل جانا چاہیے تھا، تقریباً واجبات کی مد میں 3.5 ارب روپے واٹر بورڈ کو دینے ریٹائر ملازمین۔ اور پہلی فرصت میں تو جیسے ہی آدمی ریٹائر ہوگا، ہمارا ملازم ریٹائر ہو تو اس کو فنڈ دیا جاتا ہے، فنڈ کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی LPR کی رقم، وہ دونوں چیزیں 3.5 سال سے ریٹائر ہوئے ملازمین کو نہیں مل رہی۔ اب یہ وہ چیز ہے، جب ایک تنخواہ رک جائے گی تو وہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے؟ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل میں اس وقت ملازمین ہمارے ہیں، وہ ریٹائر ملازمین، جو کہ ان کو یہ اماؤنٹ نہیں دیا جا رہا، ان کی پیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گروپ انشورنس کا کیا ایشو ہے؟ گروپ انشورنس کا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اسٹیٹ لائف انشورنس کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا جو معاہدہ ہے واٹر بورڈ کا یا KMC کا یا KDA کا، کیونکہ تینوں سسٹر ادارے ہیں، اسٹیٹ لائف کو ہمارے یہاں سے ہر مہینے کٹوتی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک اماؤنٹ، ایک ہیڈ ہے 02 کر کے ان کا واٹر بورڈ میں، اس سے اسٹیٹ لائف کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ ہم سے تو ہر مہینے لیا جا رہا ہے۔ اب اسٹیٹ لائف کا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 60 سال میں ریٹائر ہوگا آدمی، اور 65 سال کی عمر سے پہلے اگر انتقال کرے گا تو یہ پیسے ملیں گے، ورنہ وہ پیسے نہیں۔ وہ پیسہ ان ملازمین کا ہے جو ہر مہینے اپنی تنخواہوں سے کٹواتے رہے، یعنی وہ پریمیم کہہ لیں، اسے پریمیم کی رقم کہلائے گی۔ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ رقم مل جانی چاہیے، مگر انہوں نے شرائط ایسی رکھ دی ہے کہ 55 ایئرس میں سے پہلے آدمی فوت ہو جائے تو اس کے علاوہ ان کو پیسے ملیں گے۔ تو یہ تو اس پالیسی کا حصہ ہوگا نا، اس میں طے ہوگا؟ اس پالیسی کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے کلیئر ڈیسیشن دیا، یہ دوران سروس کے تحت یعنی لائف انشورنس ہے، جو اس کی کٹوتی ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ پہ ایک طرح کی آپ یہ سمجھ لیں کہ BC ہے، اس کی BC کی طرف اس کا پیسہ جمع ہو رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت پہ وہ انشورنس کمپنی جو
मुनाफे के साथ पैसा देती है वो देना चाहिए, जैसे सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, दीगर और चीजें। सूरत हाल ये है कि हमारे इदारे में एक और सबसे बड़ा संजीदा मसला पैदा हो गया कि स्टेट लाइफ के नाम पे कटौती तो कर ली जाती है। अभी हमारे कुछ मुलाजमीन जो है वो दौराने सर्विस जो है ड्यूटी जो है वो इंतकाल कर गए, उनके केसेस बनाकर भेजे गए स्टेट लाइफ। वहां से यह आया कि जी आपकी रकम ही अदा नहीं हो रही, अब 3 करोड़ 4 करोड़ रुक जाना है, 5 करोड़ रुक जाना है, उसे स्टेट लाइफ जो है वो हमारे उन मरहूम मुलाजमीन के पे अदायगी नहीं करता। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वाटर बोर्ड को पैसा रोक नहीं सकता, उसको देना चाहिए, और जैसे ही मंथली कटौती है उसको भेज देना चाहिए। अब हमारे पास ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर माहाना जो है कितने पैसे जाते हैं? 1 करोड़ रुपए माहाना जा रहा है। अच्छा, 12 करोड़ रुपए सालाना हो गए। अच्छा, 34 वर्ष से ये स्टेट लाइफ से हमारा मुआहदा है। अच्छा, 34 वर्ष से मुआहदा है, और अब आप इसका अमाउंट को अगर आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो ये बन जाते हैं आपके 408 करोड़ रुपए। 408 करोड़ रुपए 34 सालों में स्टेट लाइफ को जा चुके। तो शायद लोधी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइए कि कितने मुलाजमीन हैं वाटर बोर्ड के, लोअर ग्रेड के कितने मुलाजमीन हैं, ऑफिसर ग्रेड के कितने मुलाजमीन? लेकिन तकरीबन 10,000 मुलाजमीन की करीब फिगर जो है इस वक्त जो है लेबर स्केल के अंदर है। बाकी अफसरान आते हैं हमारे तकरीबन 1700-1800। असल में अलविया ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है, अगर हमारा मुआहदा पहले था दौरान सर्विस का, जब हालिया फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, मौजूद अदालत का एक फैसला आ चुका है, तो इसको रिवाइज करना चाहिए, इसको नोटिफाई करना चाहिए। इंतज़ामिया हमारा इदारा या हमारे सिंध गवर्नमेंट के तरफ से इस मौजूद अदालत का जो भी हुक्म है उसके मुताबिक होना चाहिए। हमारे इदारे के अंदर आप देखें कि मुलाजमीन जो दौरान सर्विस इंतकाल कर जाते हैं, देखें जनरली उनकी फिगर कम होती है, लेकिन एक रिटायर्ड मुलाजमीन की एक तादाद है। हमारा मुतालबा यह है कि जब 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो रहा है तो कम से कम उसको इंश्योरेंस की मद में वो रकम अदा की जाए जो उसकी सर्विस से हर माहाना तनख्वाह के अंदर जो है वो कटौती होती है। तो ये बताइए कि ये जब ये फैसला, बात आपकी काट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जबकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और स्केल वाइज है, इसके अंदर उन्होंने एक फिगर रखी है, मिनिमम फिगर 3 लाख रुपए और मैक्सिमम जो है 25 लाख तक का अमाउंट है स्केल वाइज। लेकिन ये अभी तक जो है इदारे पे हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है। इसकी वजूहात क्या हैं क्या नहीं, हमने तो बहुत कोशिश करी है मालूमात करने की, तहकीक भी करी, लेकिन हैसियत यूनियन आप भी तो वो एग्रीमेंट तो ले सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं, आप उसको एक्चुअली पढ़ें तो सही। बिल्कुल, अब हम इस मामले में पड़ गए और अपनी कोशिशें हमारी अब जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद से कुछ अगर हमारे मुलाजमीन का फ़ायदा हो जाता है तो यकीनन कोशिश हमारी जारी है इस हवाले। तो सुहेल मेमन साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि ये ग्रुप इंश्योरेंस वाला जो मसला है, क्या मुलाजिम इस बारे में जानते हैं, उन्हें खुद इस बात का एहसास है, क्या उन्हें मालूम है कि उनके जो पैसे जा रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे, ये वो जानते हैं इस बात को? ये पूरी एक पाकिस्तान के तमाम सरकारी महकमों की पॉलिसी है। इसमें जो है 60% जो है वो मुलाजिम बेयर करता है और 40% इंतजामिया यानी वाटर बोर्ड बेयर करती है। अच्छा, उसको लास्ट में जाके उनकी पेंशन के जो वाजबात होते हैं उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे पाकिस्तान के अंदर ये मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा, तो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। पंजाब में जो है पोस्टल करके कुछ उनकी उन्होंने जो है बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी किया और लोगों को अवेयरनेस के लिए हर इदारे में एक लेटर भी भेज दिया कि उनके जो पैसे वो अप्लाई करे इंतजामिया, तो उनकी अदायगी होती चली जाए। तो पंजाब में जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक इसका नोटिफाइड नहीं किया और ये इंतजामिया का मसला है। सिंध गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे तो फिर जो इदारों की इंतजामिया, खाली वाटर बोर्ड नहीं है, कराची के दीगर बहुत सारे इदारे हैं, तो ये दीगर सरकारी इदारों का भी यही हाल है कि उनको भी वहां नहीं मिल रहे पैसे। जैसे कि हम फेडरेशनों से भी राब्ते में रहते हैं, यूनियन की बहुत सारी फेडरेशन कराची में काम कर रही हैं,
وہ سب اسی جدوجہد میں. مگر ہم اپنے ادارے کی بات کرتے ہیں کہ ادارے کا تو ہمارا ٹھیک ٹھاک ایک اماؤنٹ جا رہا. اب پھر سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پیسہ اگر 65 سال سے پہلے نہ بھرے تو یہ اربوں روپے جو ہے وہ فورفٹ ہو جائیں گے. تو کس مد میں فورفٹ کریں گے, کیوں کریں گے؟ یہ اگر آپ پورے سندھ کے اندر لے لیں, وہ خالی کراچی کا محکمہ لے لیں, کراچی کے محکموں میں اگر یہ گروپ انشورنس کی رقم کو آپ لے لیں تو IMF کا قرضہ آپ اتار سکتے ہیں. خربوں میں جاتی ہے یہ رقم. اچھا, اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اس کو, ہم نے تو آپ کو اپنے واٹر بورڈ کی فگر دے دی. اس حوالے سے آپ کی انتظامیہ سے بھی بات 408 کروڑ روپے اسٹیٹ لائف کو جا چکے. اچھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آ گیا, دیکھو ایک سال ہو گیا, مگر 408 کروڑ روپے کی رقم تو وہاں جا چکی. اب اسٹیٹ لائف کا کہنا ہے کہ جو لوگ 65 سال سے پہلے جو مریں گے, مرنے پہ ملے گی, 65 سال کی عمر کے بعد نہیں ملے گا. 66 سال میں مرتا ہے تو اس کا پیسہ فورفٹ ہو گیا. وہ تو ایک ٹائم پیریڈ ہوگا نا, وہی کہہ رہا ہوں, کوئی ایگریمنٹ سامنے آئے نا آپ کے, تو ایکچوئل اس سے دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ ایگریمنٹ کیا کیا ہے. یہ ایگریمنٹ تو ٹوٹل سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ سے, یہ تو گروپ انشورنس چلا آ رہا ہے جب سے ہی سرکاری محکموں کا وجود عمل میں آیا پورے پاکستان میں. تو یہ کہ کٹوتی چلی آئی اور اس میں ملازم کو بالکل لازم رکھا جاتا ہے کہ جی ہمارا معاہدہ ان سے کیا ہے, ہم پریمیم کی رقم جو ہماری جا رہی ہے وہ کس شرائط پر جا رہی ہے. شاہد صاحب, آپ بتائیے کہ اس حوالے سے انتظامیہ سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے, واٹر بورڈ کے MD سے اور دیگر لوگوں سے آپ نے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل, ہم نے اپنے جو دیگر یونین کے دوست ہیں, ہمارے دوسری جو یونین ہے, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ایک مشترکہ سطح پہ جو ہے اس پہ, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سب کا ہے, یہ ایک جنرل معاملہ ہے, اس میں کسی یونین کا ذاتی مفاد نہیں ہے. تو ہم نے بات کری ہے اور انشاءاللہ تعالی 4-5 روز کے اندر ہمارا طے ہوا ہے کہ ہم ایک وفد کی شکل میں جو ہے اپنے MD صاحب کے پاس بھی جائیں, ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی توجہ دیں اس طرف, تھوڑی سی اس معاملے کو دیکھا جائے, کیونکہ یہ میری نظر میں تو ایک بڑا معاملہ ہے. اچھا, یہ ہم ناظرین کو بتا دیں کہ اس حوالے سے ہم نے واٹر بورڈ کے MD جناب اسد اللہ خان صاحب سے رابطہ کرنے کی بارہ کوشش کی ہے, ان کے موبائل پہ بھی, آفس کے نمبر پہ بھی, لیکن وہ اویلیبل نہیں ہو پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی MD جناب وقار ہاشمی صاحب اور ڈپٹی MD فائنانس جناب محمد ثاقب صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش ہم مستقل کر رہے ہیں, لیکن وہ رابطے میں نہیں آ رہے ہیں. اور سہیل میمن صاحب, یہ بتائیے کہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی؟ یہ ایشو تو آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور اس کا آگے کیا ہوگا؟ لیکن اس کی حکمت عملی تو فی الوقت کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معاملات فیصلے ہو چکے اس پہ الیکٹرانک میڈیا سے بھی رجوع کریں اور اس پہ بھرپور ایک احتجاج کی شکل اختیار کریں دیگر محکموں کے ساتھ مل کر. ہم نے KMC کے حوالے سے وہاں کی فیڈریشن کے ذوالفقار شاہ ہیں, ان سے بھی معاملات ڈسکس کیے ہیں. تو ادارے جو ہے فیڈریشنز کے ذریعے جو ہے وہ ایک بھرپور احتجاج ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. اور اس ایشو پر دیکھیں کوئی فالو اپ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے پرٹیکولرلی, اور ویسے سرکاری ملازمین کے حوالے سے گروپ انشورنس اور بین الاقوامی فنڈ ان کا جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اوور آل, ویسے کراچی میں خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس میں اچھی گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے, اور لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. ایک یہ واحد شعبہ ہے جو کہ کورونا کے دوران بھی کام کرتا رہا ہے, اور کورونا کے دوران جو سب سے پہلی انڈسٹری جسے اجازت دی گئی کام کرنے کی وزیر اعظم کی طرف سے, وہ بھی یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی تھا, اور اسی نے کام اپنا جو ہے جاری رکھا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اب آج کل کراچی میں کیا ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز کہاں پر ہیں, اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں. میں سب سے پہلے ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جبران صاحب جو کہ CEO ہیں بلو ارتھ پراپرٹیز اینڈ بلڈرز کے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عمران صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں بلو ارتھ پراپرٹیز اینڈ بلڈرز کے, اور ان کے ساتھ ساتھ
जनाब अमान उल्लाह पंजवानी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो मोहम्मद जबरान साहब, आप इससे पहले भी हमारे शो में शरीक हो चुके हैं। सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल चल रही है, कैसा मामला है रियल इस्टेट में? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो अभी तो सूरत हाल ये है कि रियल इस्टेट जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि जो कोरोना सूरत हाल है आपके सामने, अभी ताज़ा लॉकडाउन खुला है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा बूम करेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब आपने देखा था कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद कुछ टाइम ऐसा था कि वो उस टाइम पे ये थोड़ा सा रुकावट आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो आपने ख़ुद भी देखा होगा कि मार्केट में एक अच्छा तेज़ी आई है रियल इस्टेट सेक्टर में। जी सही। और मोहम्मद इमरान साहब, आप माशाल्लाह भाई भी हैं और इससे पहले आपके तीसरे भाई भी हमारे यहाँ शिरकत कर चुके हैं प्रोग्राम में। तो आप सरबराह हैं ब्लू अर्थ प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स के। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप माशाल्लाह ये एक ही फैमिली में और तीनों लोग जो है वो इस तरफ कैसे रुख कर लिया आपने, क्या वजह है आपके यहाँ आने की, क्या वजह है इस शोबे में आने की? देखिए, जिस तरह पहले भी आप भाई से आपने पूछा था तो उन्होंने बताया था आपको कि हमारा पहले बिजनेस हमारा कुछ और था, उसमें कुछ लॉसेस होने की वजह से फिर हम रियल एस्टेट मार्केट की तरफ आए, क्योंकि हमने काफ़ी सर्च किया, फिर हमें यही मार्केट बेहतर लगी। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है किसी भी मुल्क का जो है ना रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, बिल्कुल। तो इस वजह से यही वजह थी जिसकी वजह से हम लोग रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आए। अमूमन ये होता है कि हर फैमिली में बच्चों का जहन अलग अलग होता है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है। तो इस हवाले से बहरहाल ये एक अच्छी, एक खुशगवार बात है। तो इसकी वजह कहीं ये रियल एस्टेट का चार्म तो नहीं है, जो रियल एस्टेट में ग्रोथ और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, शायद ये वजह है इसमें? यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर भी इसका जो है ना ब्राइट है रियल एस्टेट का। अच्छा, अमरुल्लाह पंजवानी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप तो माशाल्लाह उस्ताद भी हैं और खुशकिस्मत हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और पंजवानी मार्केटिंग नेटवर्क के आप सरबराह हैं। तो अब रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं? बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो क्या सही समत में जा रहे हैं, क्या सही समत में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि भी इमरान ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल हर दौर में रहा है, ये नहीं कि आज कोई नई बात है। जिस तरह स्कैरसिटी है, किल्लत है मकानों की और जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक एक बिल्डर ही हैं जो इस किल्लत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मकानों की किल्लत को। गवर्नमेंट का जो सेक्टर है वो तो ना होने के बराबर है। कई स्कीमें कराची में बेशुमार हैं जो अब तक पोजीशन ही नहीं दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। बिल्डर ही हैं, बिल्डर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो इस शोबे में डिलीवर कर रहे हैं, और छोटे से लेकर एक मकान का कॉन्ट्रैक्टर से लेकर एक हाई राइज या कुछ बहुत बड़े डेवलपर से लेकर सब, अगर मैं बात करूँ तो ये वाकई इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप लोगों का क्या प्लान, क्या है आगे, फ्यूचर का क्या प्लान है, आप लोग क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से? देखिए, अभी हमारे जो है वो बैरियर टाउन कराची में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, और आगे भी जो है हमारा यही प्लान है कि हम जो अच्छे से अच्छा जो है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल लिविंग जो है वो मुतारिफ़ करवाएं और लोगों को अच्छी रिहाइश और मुनासिब कीमत में जो है उनको एक अच्छी रिहाइश मिले। ये हमारा जो है वो फ्यूचर प्लानिंग है। बाकी आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो इंशाल्लाह ताला आगे चल के काफ़ी अच्छा बूम करेगा इंशाल्लाह। इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपका क्या विजन है इसमें, आप क्या जिद्दत क्या लाना चाहते हैं? देखें, बिल्डर्स तो बहुत सारे हैं, डेवलपर्स भी बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या एक ऐसी जदीद चीज़ है या आप क्लाइंट्स के लिए क्या चीज़ बताना चाहेंगे जो आपका खासा है? देखिए, हमारा तो यही जो है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि लोगों को जो है ना अफोर्डेबल जो है ना लिविंग मिले। ठीक है, इस वक्त आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी जो है ना बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर भी हो गया है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि लोगों को जो है ना अफोर्डेबल लिविंग मिले। देखिए, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इमरान की बात को कि बेसिकली इस वक्त हमारे मुल्क को लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की बड़ी शदीद ज़रूरत है। आमतौर पर अगर देखें तो अब लोगों की रीच से प्रॉपर्टी निकल चुकी है। अलबत्ता कुछ कराची के एरियाज हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जो लोगों की नज़रों से ओझल भी है। प्रॉपर्टी तो लीज्ड एरिया तो अपनी जगह पे, कच्ची आबादियों में आप देखें वहाँ प्लॉट नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, वहाँ भी वहाँ जो है ना वो 50 लाख से ऊपर की बात होती है। बिल्कुल, अभी भी लोग कहते हैं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
हमारे पास इतने पैसे नहीं है गमले, मगर कराची का एक बहुत पोटेंशियल एरिया है मलीर का, बिन कासिम टाउन का, वहाँ इस वक्त भी लैंड जो है वो सस्ती है। और सबसे अहम बात ये कि इस हुकूमत की जो सूबाई हुकूमत है इसकी ख़ास नज़र है, क्योंकि उनका वोट बैंक वहाँ पर है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। बहुत से ऐसे नई सुजानी टाउन देख रहे हैं, वहाँ ना पानी है ना बिजली है, मगर ये मलीर का इलाका ऐसा है कि पुराना इलाका है पाकिस्तान बनने से पहले का, वहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। तो और सस्ती हैं ज़मीनें, कोई ऐसे बच्चे आज भी अफोर्ड करके लोग उस पर परचेज कर सकते हैं। तो इस वक्त लो कॉस्ट हाउसिंग की बड़ी शदीद ज़रूरत है इस कौम को, क्योंकि अब कराची की प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट रेंज से निकल चुकी है, मगर अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ मतलब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अभी भी लोग जो हैं वो इतने पुरएतमाद नहीं है किसी भी हाउसिंग स्कीम में या सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अभी भी उनके दिल में डर खौफ है, जो आए दिन देखते भी रहते हैं कि डुप्लीकेट फाइलें, फिर प्लॉट, फिर बिल्डर कहता रहता है कि हाँ बस ये आपको 4 साल में डिलीवरी मिलेगी, पता चला 15-15 साल से लोग ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। तो ये इसके इसमें एक बात आपको ऐड करूंगा, बेसिकली यहाँ हमारे यहाँ जो लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं ना, उस पर कंट्रोल नहीं है उनका बिल्डर्स के ऊपर या कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये सर पैर से लेकर सर तक जो है वो मुलविस हैं बहरहाल करप्शन में। आपको ज़्यादा अंदाज़ा, आप सीनियर साफ़ी हैं। बात यह है कि जब तक इनको कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं होगी ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे डेवलपर्स हों। ये तो आवाज़ भी कह के चीख के थक गया। इसके लिए ज़रा एक बिल्कुल एक है, अगर रेरा इस मुल्क की अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूएई में है, इंडिया हमारा हम पड़ोसी मुल्क के अंदर है रेरा, ये एक वन विंडो फैसिलिटी और सिंगल अथॉरिटी अगर बन जाए, और इस पर कानून साजी भी ऑलरेडी हो चुकी है कौमी असम्बली से। इसका बाल वो जो मैं इस मौके पर मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। ये अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर्म हो गई रेरा, तो ये 90% मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो डबलिंग के, ये बिल्डर जो डबल फाइलें बेचते हैं, टाइम पर पोजीशन नहीं देते लोगों को, एक अदम एतमाद सी कैफियत है। तो ये इमरान साहब बताएं ना इस बारे में। इमरान साहब आप बताएं, आप क्या करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, कैसे उनको मुतमईन करेंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे? देखिए जी, हमारा तो यही गोल है कि हम जो है ना टाइम पे डिलीवर करें, और जो है ना इससे पहले कोई टाइम पे डिलीवरी दी आपने? बिल्कुल दिए हैं हमने। पहले स्टार्ट किया था घरों की कंस्ट्रक्शन से ना। अच्छा, कहाँ किस इलाके से? ये बैरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त 20 से 22 घर मैं बना रहा हूँ, और उसमें जो है विलास बना रहा हूँ, और वो जो है डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे। और इंशाल्लाह ताला कितने विलास डिलीवर कर चुके हैं आप? हम लोग इस वक्त जो है 4 से 5 जो है वो विलास डिलीवर कर चुके हैं। 2 जो हैं अभी चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में वो भी डिलीवर हो जाएंगे। तो जिब्रान साहब ये बताइए, तो आप लोगों की मौजूदगी जो है वो वहीं है, बहरिया टाउन में ही है, आपके ऑफिस वगैरह भी वहीं हैं? जी जी, हमारा ऑफिस जो है वो बहरिया टाउन ऐसा तो नहीं कि लोग कागज़ दिखा के फिर निकल जाते हैं, उसके बाद फिर ढूंढने से मिलते नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अब रियल एस्टेट सेक्टर में जो है काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है वो आ रहे हैं, और जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब सेफ़ हैं और सेफ हैंड्स में हैं। और बाकी ये है कि बिल्डर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारा यही है मेन मकसद कि जो अच्छा काम करें और टाइम पर डिलीवर करें, ये हमारा मेन मकसद है। तो आप लोगों का, जैसे अमाना साहब भी कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर में देखिए नीड तो बहुत ज़्यादा है। जी जी, लोगों को तो घर चाहिए, ज़मीन चाहिए अपनी, इवन के फ्लैट भी अगर मिल जाए तो भी वो बड़ा खुश होते हैं कि चलें एक अच्छे उसमें मिल जाए, लेकिन हर एक को ये फिक्र होती है कि इसमें कोई बाद में कोई पंचायत नहीं हो, कोई और मसला नहीं खड़ा हो जाए, कहीं कोई और नहीं वारिस निकल के आ जाए कि ये तो ज़मीन मेरी थी, चीज़ें थी ना इस हवाले से। तो आप बहरिया टाउन से बाहर भी निकल कर शहर के और भी इलाकों में कोई इरादा रखते हैं कुछ प्लान करने का? लेकिन देखिए, इरादा तो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची के जो वन विंडो ऑपरेशन है, क्योंकि सारे मामलात वहाँ एक हेड ऑफिस से ही हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी एक बहुत अच्छी जो है ना वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उससे जो है वो बिल्डर को भी काफ़ी फ़ायदा रहता है, और उससे जो बिल्डर के आगे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी जो है वो एक पहले एक तसल्ली करते हैं अपने जो है ना वो कहीं पे बुक करवाने के लिए कि हाँ ये बिल्डर सेटिस्फाई है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड और उसकी प्रीवियस काम की डेवलपमेंट देख के, तो उससे जो है वो अब अच्छा काफ़ी। और इमरान साहब, आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी को घर लेना हो, ज़मीन लेनी हो, तैयार प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लेनी हो, या वैसे ज़मीन लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन भी अगर करनी हो, तो क्या कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे पब्लिक की अवेयरनेस के लिए? क्या करना चाहिए उन्हें, क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं ना वो लोग, तो उनको चाहिए कि ऑन ग्राउंड प्लॉट ले,
خود جا کے وزٹ خود کریں، جا وہاں کے کھڑے ہو کے وزٹ دیکھیں کریں، جا کے۔ دیکھیں لوکیشن کو، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. کسی کی دوستی پہ تعلق پہ بھی زیادہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. جو آنکھ سے دیکھیں اس پہ یقین کریں. وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں زیادہ تر، ہے نا. ان نون بندے کو تو کوئی پیسے دے گا بھی نہیں، ہے نا. نہیں دیکھیں، دھوکہ جو ہے نا وہ جاننے والے سے ہوتا ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے نا اسی سے دھوکے کا چانس ہوتا ہے. یا لالچ میں بندہ پھنستا ہے یا پھر دھوکے قریب جاننے والے سے وہ کرتا ہے. بالکل ایسے. تو کیا کریں، زمین پہ پہلے جا کے دیکھیں کہ واقعی لینڈ لینڈ ہے. اگر کوئی بلڈر اپارٹمنٹس بیچ رہا ہے یا کچھ بیچ رہا ہے تو اس کے پاس لینڈ ہے، اس کا پیپر ہے، اس کے پاس جو ہے وہ جو ہے ٹیم اس کی کیسی ہے، اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہے تو ضروری ہے. امان اللہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جیسے سپریم کورٹ نے بھی آرڈرز دیے اور مختلف غیر قانونی تجاوزات گرانے کا آرڈر ہوا، اس میں نسلہ ٹاور کا بھی ایشو ہوا اور اس میں چیزیں ہوئی، تو یہ بتائیے کہ اس میں خاص طور پہ ایک جو بات زیادہ پرومیننٹ ہو کے آئی وہ تھا ٹائٹل آف پراپرٹی. ایک بات نا جس سے یہ لگا کہ جی جب ٹائٹل صحیح ہے تو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ اصل میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ٹائٹل ڈاکومنٹ اول تو کوئی بلڈر جو ہے نا وہ ڈسپلے نہیں کرتا. بیسیکلی نسلہ تو کہ کرنا چاہیے، بالکل ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، ویب سائٹ پہ ڈسپلے کرنا چاہیے ان کو. یہ ہے کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، اب ہم کس طرح کام کر رہے ہیں. بہرحال جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ ٹائٹل ڈاکومنٹ کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت یہ ہے کہ ٹائملی ڈیلیور کی اور لینڈ کے اسٹیٹس کی ہے. نسلہ ٹاور کے ساتھ یہی ہوا کہ بلڈر کے پاس لینڈ کچھ کم تھی اور اس نے زیادہ ایکوائر کی اور اس کو ایکوائر کر کے پھر اس نے کھڑا کر دیا، تو جو ایک کسی اور کی زمین پہ قبضہ کر کے بنایا گیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر عطاب نازل ہوا. اور اگر آپ اس کی مثال لے لیں جو الادین پارک ہے، الادین پارک تو ٹوٹلی لینڈ ہی جو ہے وہ 25 سال کی 30 سال کے لیز کے اوپر دی ہوئی تھی، گورنمنٹ کی لینڈ تھی، تو وہاں تو یہ ٹوٹنا تھا ہی ہے. ہمیں تو پتا تھا یہ ہوگا ٹائم. بس اب لاسٹ ورڈ آپ کا کیا ہوگا پبلک اویئرنیس کے لیے، کیا کرنا بتانا؟ بس اگر ریئل اسٹیٹ میں اگر اپنا گھر شیلٹر چاہیے تو ڈیفینیٹلی بلڈر کی ریپو دیکھیں، جا کے جگہ وزٹ سائٹ وزٹس کریں کہ بلڈر نے کیا ٹائملی پچھلے ڈیلیور کیا ہے، کیا اس کے کمٹمنٹس نے پورے کیے ہیں، اور یہ کہ اس کے ٹریک ریکارڈ ضرور دیکھ لیں. اور ڈیفینیٹلی جو اس کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے یا جو اسٹیٹس ہے لینڈ کا وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ. چلیں بہت شکریہ آپ کا. امان اللہ پنجوانی صاحب ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، اور محمد عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ. محمد جبران صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر گفتگو کرتے رہیں گے، یہ بڑا واسط موضوع ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک ایسے فراڈ کی جو سامنے آیا ہے کراچی میں، اور یہ کوئی معمولی فراڈ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا فراڈ ہے، اور یہ فراڈ بینکنگ سیکٹر میں رپورٹ ہوا ہے. اور ویسے تو فراڈ کی مختلف قسمیں ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگوں کو، عام عوام کو بیوقوف بنا کر، کبھی فون کال کے ذریعے، کبھی ویسے خود پہنچ کر، اور ایسی چیزیں بیچ کے ان سے پیسے لے جاتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن اس وقت میں کیا کیا جائے جب بینکنگ سیکٹر جیسا ادارہ، بینک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنے رقوم وہاں جمع کرتے ہیں، اپنے ڈپازٹس وہاں رکھتے ہیں، اپنے اثاثے وہاں رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی فائلیں، گاڑیوں کی فائلیں، اپنی جائیدادیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زیورات تک بھی وہاں جا کے رکھتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے. بینک ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز ریکارڈ پر رہتی ہے، بینک عملہ ہوتا ہے وہاں پہ، ہر وقت گارڈز ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جب بھی کلائنٹ ڈیمانڈ کرے اس کو اپنی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن یہ جو فراڈ سامنے آیا ہے، یہ ایک اتنا بڑا فراڈ سامنے آیا ہے جس نے سب لوگوں کو دہلا دیا ہے، اور سب لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے ہیں. خاص طور پر جو ہمارا خواتین کا طبقہ ہے وہ تو اس سے شدید پریشان ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بھی یہ بات رپورٹ ہوئی ہے اور ہو چکی ہے کہ جے ایس بینک کہ کچھ برانچز میں، اور پہلے ایک برانچ کا ذکر آ رہا تھا، پھر اس کے بعد دوسری برانچ کا بھی اس میں نام آیا کہ وہ بھی اس میں ملوث نکلی. وہاں پر جن صارفین نے، جن لوگوں نے اپنے سونے کے زیورات وہاں رکھے تھے، وہ زیورات تبدیل ہو گئے نقلی زیورات سے. اصل زیورات غائب ہو گئے اور اس کی جگہ پر نقلی زیورات رکھ دیے گئے. کچھ زیورات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی کہ وہ پیتل کے تھے اور ان پر سونے کا پانی چڑھا کر انہیں رکھ دیا گیا تھا. جے ایس بینک کی ایک اسکیم تھی کہ سونا دو اور ادھار لو، سونا دو قرض لو. تو سونے کے عوض لوگوں کو قرض دیے گئے، اور لوگوں نے اپنے گھروں میں جو سونا رکھا ہوا تھا وہ سونا لا کر جے ایس بینک کے برانچز میں جمع کیا. اور اس کے بعد آڈٹ ٹیم کو یہ پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ ایشوز ہیں. تو جب آڈٹ ٹیم وہاں پہنچی جے ایس بینک کی گلشن اقبال برانچ میں، تو یہ انکشاف ہوا کہ وہاں جو سونا صارفین نے رکھوایا تھا وہ سونا اصلی وہاں ہے ہی نہیں.
इसी मौजू पर हम बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम शकील बेग साहब, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के और सारिफीन के हुकूक की हर वक्त बात करते रहते हैं. अस्सलाम वालेकुम शकील साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपका हमें समझने. और नाज़रीन, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जीएस बैंक के हुकाम से हमने रब्ता करने की बहुत कोशिश की. कल से मैं उन्हें रब्ता कर रहा था. उनकी एक खातून तर्जुमान से भी मेरा रब्ता हुआ, मेरी बात हुई. मैंने उनसे बारह रिक्वेस्ट की कि आप हमारे शो को ज्वाइन करके और अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान करें और बैंक की पोजीशन वाज़े करें. ताहम उन्होंने शो में आने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी अफसर भी शो में आने के लिए तैयार नहीं है. बहरहाल हमारे शो के बाद भी अगर जेएस बैंक की तरफ से कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा शो उसके लिए हाजिर है. शकील बेग साहब, आपने ये खबर सुनी? नहीं जी, बस सुनना तो बहुत छोटी बात है, बल्कि बड़े धचके लगे, क्योंकि रीजंस ये था कि मैं किसी ट्रैवल पे था तो मेरे पास टेक्स्ट आने शुरू हुए, क्योंकि लोग डेफिनेटली जो कंज्यूमर है वो हमारे साथ लेजेंड में होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे बात कर रहे होते हैं, तो हमें लोगों ने रब्ता किया. तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी. तो फिर फौरी तौर पर जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मेरे पास निजी टीवी से एक दो क्लिप्स आए थे जिसमें पता चला कि फिलहाल उस वक्त तक सिर्फ निजी बैंक कहा जा रहा था कि जी कोई ऐसा मकामी बैंक है जिसमें ये वाक़या हुआ, और थोड़ी देर बाद पता चल गया जी वो बैंक कौन सा है, जी जेएस बैंक है. अब उसके बाद जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में भी कहा कि ख़वातीन इसमें बड़ी परेशान थी, और हकीकत बात यह है कि सिर्फ कराची नहीं, मेरे पास रावलपिंडी से और रहीम यार खान से और कराची के 3-4 जगहों से ख़वातीन ने ही सोशल मीडिया पर रब्ता किया और मुझसे ये पूछा कि जी ये बताइए कि जो हमने जमा की ये चीज़ें, हालांकि वो एक बैंक गया है लेकिन लोग दीगर बैंकों के मामले में भी ये पूछ रहे हैं. डेफिनेटली लोगों में एक पैनिक तो हो गया ना कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो लॉकर्स जो है ना वो कहीं खुल चुके हों और सोने की जगह कोई पीतल रखा हो. पीतल के अलावा मे भी के ये भी एक न्यूज़ थी कि जनाब पीतल का पानी भी चढ़ा हुआ था, सोने का पानी चढ़ा हुआ था उन चीज़ों पे. तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से बैंकिंग के सेक्टर के ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा धचका लगा है. और पहली बात यह है कि मुझे अजीब सा लग रहा है कि चले एक सिक्योरिटी कंपनी होती है, वो कभी लॉकर तोड़ के ले जाते हैं, कभी क्या करते हैं, आप ऐसा स्टाफ अपॉइंट करते हैं कि जो इतना बड़ा घिनौना किस्म का सार्फिन के साथ मजाक करते हैं या सार्फिन के नाम से मजाक करते हैं. तो ये तो बैंक के मैं समझता हूँ इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ उनकी जो लोग हैं, क्या वो ऑडिट डिपार्टमेंट ने चलो बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि दिखाया, चाहे वो इन्हीं का अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था उसने ये किया. तो ये जब लोगों को अपॉइंट करते हैं तो क्या उसकी कोई काउंसलिंग नहीं होती कि ये बैंक के और ये जो काउंसलिंग या कोई पुलिस वेरिफिकेशन? वैसे तो घर में काम करने वाला मुलाजिम हो तो कहते हैं उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए. तो आप बैंक जैसे इतने अहम इदारे में आप अहम पोस्ट पे किसी को बिठा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है? बड़ी हैरान कौन बात है. और मैं आपको बताऊं कि कल एक साहब ने मुझे फोन करके बताया कि जो गुलशन वाली ब्रांच के बारे में उसने बकायदा ये बात बताई कि जी हमारे पास कोई खवातीन आई थी कि जनाब आप पैसा ले लें और सोना रखवा दें. वहीं उसी ब्रांच से, और गुलशन ब्रांच, उसने नाम भी लिया बकायदा. तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यानी कि जब एक स्कीम में भी हम ये नहीं कहते कि बैंक कहीं नेगेटिव सोच रहा होगा, बैंक अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन जो लोग अपॉइंट किए वो तो उसके नाम को भी खेल गए ना. आज देखें ना, आज मेरा ख्याल है कि जेएस बैंक के जो मालकान है वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे, मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि जनाब हम कहां जाएं. अब वो कर तो उनके लोगों ने दिया है ना. अब उसकी वजह से सिर्फ जेएस बैंक नहीं और दीगर बैंकों पे भी 100% लोग जो है ना परेशानी के आलम में. और ऐसा है इस वक्त आपके इस शो के देखने के बाद देखिएगा लोग आपसे भी रब्ता करेंगे. जी बताएं क्या. हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब, जो कि इन मामलात को और बैंकिंग सर्कल को खासतौर पर कवर करते हैं, देखते हैं. टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. जरा इस केस की तफसील बताएंगे थोड़ा कि ये जेएस बैंक वाला जो फ्रॉड सामने आया है इसका स्टेटस क्या है और ये कैसे ये सामने आया? जी ये बिल्कुल ये जेएस बैंक की 2 ब्रांचेस हैं जिसमें बतदरीज जो है वो इंकशाफात हुए कि वहाँ जो लोगों ने अपने सोने के जेवरात रख के पैसे दिए थे उसकी जगह पीतल पे सोने का पानी चढ़े जेवरात या नकली जेवरात रख दिए गए थे. जबकि उसी तरह उसी केस में दूसरी जो ब्रांच है उसमें जब सामने आया उसमें पता चला जी कस्टमर्स भी जाली हैं और उसके बाद जो सोना है. अच्छा, कस्टमर्स भी सारे जाली निकले हैं, कोई असली कस्टमर नहीं है? जी ऐसा तकरीबन मेजॉरिटी जो कस्टमर्स हैं वो जाली निकले हैं. जबकि दूसरी जानिब जराये का ये कहना है कि 75 करोड़ रुपए मालियत के जो जेवरात है उस पर हेर फेर है. और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज 12 मुलजमान जिसमें 2 खवातीन भी शामिल है उनको अदालत में पेश किया गया था, जहां उनको 2 खवातीन को जेल रिमांड पे भेज दिया गया. जबकि 10 जो मुलजमान है उनको दोनों का रिमांड पर उसके पुलिस के हवाले कर दिया गया. वक्त ये केसेस 2 थानों में दर्ज है जिसमें एक थाना शारा फैसल है और थाना अजीज भट्टी है, जहां दोनों के हवाले से तहकीकात जारी है. और इसमें सबसे बड़ी जो बुनियादी बात वो ये है कि बैंक इंतजामिया के बिल्कुल नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और जब तक ऑडिट टीम जिससे बहुत अच्छा काम किया
ऑडिट टीम ने जब तक उसका सुराग नहीं लगाया, जब तक उसको चेक नहीं किया, तब तक किसी को भी इस हवाले से इल्म नहीं हो सका। और दरानी का ये कहना है कि गुज़श्ता कई माह से जारी इस जो मामला है, इसमें मुबैना तौर पर हाई अप्स को इसका इल्म जरूर होगा और उसकी आशीर्वाद के बगैर ये होने से। जावेद चौधरी साहब, आप माशाल्लाह इनको कवर भी करते रहे, बस आखिरी सवाल आपसे ये होगा, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा कि ये आपने इससे पहले इतना बड़ा फ्रॉड देखा और इसमें लूप होल क्या हो सकता है, इसमें क्यों हुआ ये था? जी नहीं, मैंने जिस तरह बताया कि इससे पहले इतनी बड़ी मालियत का जो फ्रॉड है वो किसी बैंक का सामने नहीं आया। दूसरे फ्रॉड होते रहते हैं, लेकिन सोने के टेबल जो है इस तरह का फ्रॉड जो पहली दफा सामने आया, और मैंने जिस तरह पहले कहा। बहुत शुक्रिया आपका जावेद चौधरी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। शकील बेग साहब, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सारिफीन की अवेयरनेस के लिए, क्या कहेंगे बताइए? मैं तो ये सारिफ क्या करे अब? देखिए, सारिफ का यही है कि एक तो पहली बात ये है कि उसके लॉकर को चेक करने से पहले हर चीज की एप्लीकेशन आ गई है। एक एप्लीकेशन ऐसे आनी चाहिए कि उसका लॉकर खुले तो उसे पता होना चाहिए कि मेरे लॉकर को किसी ने छेड़ा है। और अगर आज खबरें ऑनलाइन हम देख सकते हैं, फातिया कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है लॉकर भी ऑनलाइन उसको दिखाना चाहिए ताकि वो अपडेट रहे। अगर कंज्यूमर अपडेट रहेगा तो बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा है, वरना दूसरी सूरत में शायद बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा धचका इसकी वजह से लगेगा। तो ये जेएस बैंक से आप भी चूंकि राब्ते में रहते हैं और इस तरह की चीजें, ये सजेशन आपकी ये भी अच्छी है इस हवाले से, तो क्या हुकाम से भी आप राब्ता करने की कोशिश करेंगे या अपनी तजावीज़ उन्हें देंगे? मैं तो समझता हूं जैसे आपने खुद राब्ता किया और उनको अपना बिल्कुल वर्जन देना चाहिए था। और देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें मिला हुआ जरूर होगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ना उनके बैंक के स्टाफ में ही, इसको बेसिकली एफआईए की तरफ जाना चाहिए इस मामले को, ताकि एफआईए इसको देखे, एफआईए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि इसके अंदर और बड़ी चीजें निकलेंगी। पुलिस अपनी जगह कर रही है, इसमें बैंकिंग जो स्टेट बैंक है उसको एक अपना रोल प्ले करना चाहिए, वरना होगा क्या है कि इससे दूसरे बैंकिंग जितने भी बैंक है उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कंज्यूमर तो इस वजह से परेशान हो जाएगा कि मेरी रकम जो पड़ी हुई है या मेरी चीजें जो पड़ी हैं क्या वो महफूज भी हैं कि नहीं महफूज। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और कंज्यूमर राइट्स पे फिर भी आपको ज़हमत देते रहेंगे, दोबारा भी बात करेंगे। और नाज़रीन, हमने बात की आज जेएस बैंक के एक बहुत बड़े फ्रॉड की, जो कि 75 करोड़ से ज़ायद का फ्रॉड हुआ है, और इस हवाले से हमने स्टेट बैंक से भी रब्ता करने की कोशिश की थी कि उनका भी कोई मौक़िफ़ सामने आ सके, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।